getting a parent's journey of Bhatnagar family today. Next slide. Basically, SNEAK Kriya Foundation, I'll quickly introduce. Like, we have a special needs center. Our motto is to provide conducive environment for the children with special needs. Actually, in Nagpur, we are based and we are trying to get all the recreational, community and social rehabilitation, all the centers under the one roof. Through the webinar series, our motto is to educate parents and develop their perspective towards right kind of intervention and treatments. We can guide parents in properly, and this parent journey definitely will help you to get some experiences. Next, sir. Sushant, sir, next. Yes. So here we have some Akshay's achievements, like he got the Kevin Care Ability Mastery Award. Here we can see Akshay with Collector of Jaipur, nominated as a brand ambassador for Jaipur district by Election Commission of Rajasthan 2019 for Parliament election. Next. सर नेक्स्ट या हम अक्षय ने हमारे काफी सारा अचीव किया है, हमारे पास लिस्ट है. आई मीन इट्स अनबिलीवेबल कि कितना कुछ कर सकते हैं. जैसे उन्होंने ही इज द वन एंड ओनली वन ग्रेजुएट in history of Rajasthan, third highest academic achievement in the only government employee have his autism. He's a good swimmer, solo dancer. He got state award in category of role model, national award, Kevin Care Ability. We just now saw that. Divyang Ratna Award, Jaipur Ratna Award, and he is a district icon and brand ambassador for general election in Jaipur now. Next, sir. Also, he has awarded with the trophy for incredible achievement by Honorable Collector District. स्पोर्ट्स में भी हमारा बहुत अच्छा किया है. इसमें गोल्ड मेडल्स मिले हैं हर एक. इसमें स्विमिंग गोल्ड मेडल मिले हैं, सिल्वर मेडल इन पैरा एथलेटिक्स, ब्रॉन्ज मेडल. काफी अचीव किया है. एंड another prestigious award he got is Can Make a Difference for the inclusion in higher education and employment by youth for jobs at Mumbai. आगे sir, next. Another good thing, he got Hindi and English typing. He's mastery in that. Various TV programs we can see Akshay with वाले, Soldier of Patrika, अपनी कमियों को बढ़ाना, अपनी खूबी, ये काफी कुछ इन्होंने अचीव किया है. ये दो वेबसाइट है, एक supportdisability.com जो प्रतिभा दीदी प्रतिभा भटनागर मैम काम कर रही है, और उन्होंने एक वेबसाइट की है जो उसके द्वारा वो बताना चाहती है कि अक्षय ने कैसे ऑटिज्म को डिफीट किया है. So this is www.akshayDefeatAutism.com. आप जाके उनके सारे अचीवमेंट्स देख सकते हैं. सर नेक्स्ट. हम वीडियो प्ले करें प्लीज. कुछ वीडियोस देखते हैं अक्षय ने क्या क्या अचीव किया है, कैसे किया है. ओके, वीडियोस के पहले हम जानते हैं कैसे ऑटिज्म बीमारी से हराया है अक्षय ने. Ma'am, can you see the video? No.
Now? हाँ. Okay. Can I play video? Yes. Typing करते हुए. Typing expert. स्वाधीनता स्पेक्ट्रम विकार निर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता के लिए श्री अक्षय भटनागर जयपुर को पुरस्कार Yes, and he's got the award. उपलब्धियों में जज्बे की एक मिसाल कायम है। रोल मॉडल National Award for Empowerment of Persons with Disabilities got. Okay. हम आते हैं अभी बेटे से मम्मी पर आते हैं. वेलकम प्रतिभा दीदी, प्रतिभा भटनागर जी, जो अपना सपोर्ट फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है. सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की. Former member of high level committee for PWDs, para level volunteer and state award recipient in category of best person working for the PWDs in 2018. And most importantly, ये अक्षय की मॉम है. This is more better introduction मुझे लगता है. तो हम शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से. When and how did you find out that Akshay has autism? कब आपको पता चला? गुड मॉर्निंग हर्षाली, और जितने भी पेरेंट्स जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हम अक्षय के बारे में हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. ये बहुत अच्छा होता है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण आए, वो भी खास तौर पे ऑटिज्म डिसेबिलिटी में, जिसके बारे में आज भी इट इज द लीस्ट नोन डिसेबिलिटी अमंग ऑल द डिसेबिलिटीज. अभी तक हम इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, हालांकि पहले से परिस्थितियां बेहतर हुई है. पर अगर हमारे सामने कोई एक ऐसा उदाहरण आए जिसमें किसी बच्चे ने कुछ अचीव किया है, तो यकीन मानिए कि हजारों पेरेंट्स को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. और थैंक्स टू हर्षाली कि उन्होंने आज इस चीज को लोगों के सामने लाए हैं. आप जो मुझसे पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन कि ऑटिज्म के बारे में मुझे सबसे पहले कब पता चला जी. ऑटिज्म के बारे में मुझे 96 में, अक्षय का बर्थ 92 में हुआ था. उस टाइम सब कुछ नॉर्मल था, थोड़ा डिले ब्रीदिंग रहा इसको, बट बाद में सब कुछ ठीक रहा. पर 7-8 महीने के बाद से हमें धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि इसका जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा रोता था, बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहता था. इवन जब 1-1.5 साल का हुआ तो ये सर फोड़ना इसने अपना शुरू किया इधर उधर, जहां भी गुस्सा आता था इसको. स्पीच डेवलप नहीं हो रही थी. जब 2-2.5 साल का हो गया, क्योंकि इस एज में अमूमन हम ये मानते हैं कि स्पीच डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ. और इसके बिहेवियर टेंट्रम्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा गुस्सा, और इसके फोरहेड के ऊपर 7 इसी वजह से कि अपना सर फोड़ा इसने. और कुछ ऐसा बिहेवियर था जिसको देख के लगता था कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है. जैसे कि जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ के मसल देना, और कुछ ऐसी चीजें जिनसे हम डरेंगे लेकिन ये नहीं डरता था. दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल कि जो लिजर्ड होती है हमारे जो घर में, छिपकलियां होती हैं, तो ये जो अपने फुटवियर होते थे वो उनके ऊपर फेंका करता था कि वो गिर जाए किसी तरीके से. और छिपकली तो हाथ में इसकी आती नहीं थी, बट उसकी जो पूंछ होती थी वो हाथ में आ जाती थी इसके, और वो उसको उठा के अपनी पॉकेट में, या अगर शॉर्ट्स पहना होता तो उसमें डाल लेता था. और हम इन सारी चीजों को देख करके बड़ा डरते थे. इवन इसकी सिस्टर, इससे 5 साल बड़ी है, इसकी सिस्टर के तो मन में छिपकली से इसीलिए डर हो गया हमेशा हमेशा के लिए. आज भी वो बहुत ज्यादा डरती. तो ऐसा जो एबनॉर्मल और अनयूजुअल बिहेवियर था वो जो हमें दिखने लगा, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है. लगभग जब ये 3-3.5 साल का हुआ, तब हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए. बट डॉक्टर का ये कहना था, उस टाइम 95 की बात है, डॉक्टर का ये कहना था कि ये बिहेवियर इशू है, आपका लड़का है, इतने सालों बाद आपके परिवार में हुआ, हो सकता है इसको आप लोग बहुत ज्यादा लाड़ देते हो इसलिए ऐसा हुआ हो, और ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा. बट धीरे धीरे कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ, बल्कि चीजें और ज्यादा
बदतर स्थिति में पहुंचती रही। स्पीच का जो डेवलपमेंट था वो भी नहीं हुआ। सिंगल वर्ड मम्मा पापा वो भी बहुत मुश्किल से बोलता था। अगर कोई चीज चाहिए तो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता था, क्योंकि हम इसकी बात समझ नहीं पाते थे। इशारों से मुझे जैसे पकड़ के ले जाता था कि ये दे दो, ये दे दो। फिर आई कांटेक्ट भी नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा के साथ कंफर्टेबल था या अपनी सिस्टर के साथ। और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अगर कोई और अननोन व्यक्ति इसके सामने आ जाता था तो ये अपनी आंखों के आगे हाथ लगा लेता था, अपने सर को बुरी तरह से पीटता था, कानों पे बुरी तरह से मारता था कि ये लोग सामने से चले जाए। इट मीन्स कि वो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था अगर कोई इसके सामने आता था। और कुछ ऐसा था कि जो कार्स वगैरह था उसके लिए ये बहुत क्रेजी था, जो टॉय कार्स होती है, तो उसके व्हील रोटेट करता रहता था और उसको कानों पे लगा करके बैठ जाता था। और कुछ ऐसी चीजें जो हम बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते, जैसे पेबल्स पता नहीं कहाँ से मिल गए, कोई कागज के छोटे छोटे टुकड़े रंगीन, वो सब इकट्ठे होकर के पता नहीं कहाँ इसके पास स्टोर रहते थे, और उसमें से एक भी इधर उधर हो जाता था तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था। हमें समझ नहीं आता था ये सब क्या है। फिर लगता था चलो शायद कुछ इसका शौक है ये कार के व्हील्स का, तो हर रोज एक दो कार तोड़ता था। उसके फादर इसको छोटी छोटी कार्स ला के देते थे, पर इसको वो कार्स के जैसे हम बताते थे तो ये पहचानने लग गया था। ये जैसे हम बोलते थे ये कौन सी कार है तो ये इशारा करता था, चाहे से स्पीच नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी। बट फाइनली 96 में जब हमें लगा ये चीजें बहुत ज्यादा गलत जा रही हैं और इसके जो बिहेवियर था इस वजह से हमारी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी, फिर हम डॉक्टर के पास गए, जो हमारे जयपुर में एक हॉस्पिटल है काफी नामी, संतोखबा दुर्लभ जी, हम वहां गए। किसी चीज पे अटेंशन पे नहीं करता था। जैसे हम इसे आवाज देते तो ये ध्यान ही नहीं देता था। हमें लगने लगा क्या इसके कानों में तो कहीं कोई इश्यू नहीं है, मतलब और इसकी स्पीच और हियरिंग क्यों ऐसा है। तो वहां जाके इसका ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ, बट उसके अंदर सब चीज नॉर्मल थी। जो डॉक्टर था उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑटिज्म वगैरह कुछ नहीं बताया था, हमारे सामने भी ये वर्ड अभी तक आया नहीं था, बस ये था कि बिहेवियर इश्यू है। फिर एक स्पीच थेरेपिस्ट जिन्होंने इसका ऑडियोमेट्री किया था, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि प्रतिभा जी मुझे ऐसा लगता है कि इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो दिस वाज द टर्म जो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी। यही पूछा मैडम ये क्या होता है। उन्होंने मुझे एक बुक दी, जो बाहर की बुक थी, उन्होंने मुझे ये बुक दी, बोले आप इसे घर पे लेके जाओ और इसको पढ़ना। तो घर पे ले जाने तक का मुझे सब्र हुआ नहीं। रास्ते में जब हम कार से आ रहे थे तो रास्ते में मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, एक दो लाइन ही पढ़ पाई। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इट इज नॉट क्यूरेबल, तो बस इतना सा पढ़ते ही पूरे आपका रास्ते रिएक्शन क्या रहा, मतलब एकदम से तब? मतलब जब मैंने ये पढ़ा इट इज नॉट क्यूरेबल, तो पूरे रास्ते जब मैं घर आई तो मैं रोती भी ही आई थी। और घर आकर के फिर मैंने डिक्शनरी में वो वर्ड ढूंढा कि ऑटिज्म का क्या मतलब होता है। उसके अंदर लिखा था स्वलीनता, जो अपने में मगन रहता है। तो मैंने सोचा ये क्या कोई राजा है जो अपने में मगन रहते हैं या अपने आप, मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, वो कुछ ऐसा टर्म साउंड कर रहा था। बट मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। आज की तरह से गूगल पे हम जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं, एंडलेस इंफॉर्मेशन है, बट 96 में इतना ज्यादा कुछ था नहीं। तो वही बुक मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं उस बुक को पढ़ती गई एक एक लाइन मुझे ऐसा लगने लगा, हाँ यही तो अक्षय के साथ है, हाँ ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो इस तरह से वो जब मैंने 10-20 पेज पढ़े तो मुझे लगा कि ये जो ऑटिज्म नाम बताया गया है, हाँ ये कुछ ऐसी बहुत बुरी स्थिति हमारे साथ आ गई है। और आप समझ सकते हो कि जब किसी पेरेंट को ये पता चलता है फर्स्ट टाइम कि उसका बच्चा किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से प्रभावित है और वो दैट इज नॉट क्यूरेबल, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। हमारे साथ भी यही हुआ, बहुत रोए और ये लगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर मदर के साथ वो एक फेज सबके लिए आता है, आपके मेरे साथ ही क्यों? आपने उसको कैसे हैंडल किया, या फिर आपने नेक्स्ट क्या स्टेप उठाया उसके लिए? क्योंकि रिसोर्सेस इतने कम थे उस टाइम पे, तो आपने उसको एग्जैक्टली कैसे हैंडल किया? जब हमें ये लगा कि जितना इंसान डिप्रेस हो सकता है, डिसअपॉइंट हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, हम भी हुए।
पर इसको देख करके हमें ये लगा कि ये हमें ज्यादा, जब हमें डिस्टर्ब देख रहा है तो ये और ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा है, और ज्यादा एंग्जाइटी शो कर रहा है। फिर लगा कि अब जो भी है उसको हमें चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट करना है, और जिस तरह से हमने अपनी डॉटर की परवरिश कर रहे हैं सेम वैसे ही हमें इसको आगे बढ़ाना है। मुझे बस सिर्फ जरूरत ये थी कि मैं इसको किस तरीके से मैं इससे इंटरेक्ट करूं, आई कांटेक्ट कैसे डेवलप करूं, मैं इससे बात करना कैसे इसे सिखाऊं ताकि ये अपनी चीजें बता सके। क्योंकि एक ऐसी इसका जब ये छोटा था तब ऐसा कुछ हो गया था कि इसके साथ किसी ने जो इसकी नाक थी वो दबा दी थी और ये बता भी नहीं पाया था। तो मुझे ये लगा था कि आखिर ये कब अपनी तकलीफ मुझे बता पाएगा। पर इस बुक को पढ़ने के बाद फिर जब मुझे सब चीजें क्लियर हो गई कि हाँ है ऑटिज्म और इसका कोई इलाज नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है, फिर मैंने सबसे पहले तो स्पीच थेरेपिस्ट से दोबारा कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया जिससे कि वो मुझे स्पीच थेरेपी के जरिए ये बता सके कि ये कैसे बोलेगा, और आई कांटेक्ट किस तरह से अक्षय के साथ कम्युनिकेट करूं, मैं इसके बिहेवियर को कैसे मैनेजमेंट करूं, क्योंकि बिहेवियर इश्यूज सबसे ज्यादा थे इसके साथ। ही वाज वेरी स्टबर्न, और इतना स्टबर्न जो मैंने बताया कि स्टिचेस तक आए इसके सर फोड़ने की आदत की वजह से, हर जगह अपनी चीजों को मनवाने के लिए बहुत ज्यादा जिद करता था। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि कैसे बिहेवियर मैनेजमेंट करना है, और उसको लेकर के उसी बुक में आगे ABA को लेकर के काफी कुछ लिखा हुआ था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो उसके ऊपर तब आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी था, आपको हेल्प थी तब? 96 में ऐसा कुछ नहीं था। वो स्पीच थेरेपिस्ट भी जो होते थे, आई वॉज वेरी लकी कि दैट स्पीच थेरेपिस्ट वॉज वर्किंग इन दिशा स्पेशल स्कूल जो कि हमारे जयपुर में है। तो वो वहां जाती थी विजिट पे, तो इसलिए उन्हें डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी थी और ऑटिज्म के बारे में उन्हें उस बुक में उन्होंने पढ़ा था। तो इस वजह से मुझे ये चीज जल्दी ही पता चल गई जब ये 4.5 साल का था। तो मेरी नजर में अर्ली इंटरवेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। जितना जल्दी हमें अपने बच्चे के अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पता चले तो हम ये पता करने की कोशिश करें कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं है। तो जब हमें पता चला उसके बाद फिर हमने इसके साथ काम करना शुरू किया। तो आपने ABA और बिहेवियर थेरेपीज यही शुरू किया, मतलब बचपन में वही अवेलेबल था आपको? वही था, वो भी लिखा हुआ अवेलेबल था, उसको पढ़ पढ़ के। और उन्होंने जो मेनली मुझे बताया वो किस तरीके की इसका कंसंट्रेशन और सिटिंग कैपेसिटी और आई हैंड कोऑर्डिनेशन ये कैसे डेवलप करना है। तो वो 20 वगैरह जो उन्होंने मुझे बताया, पजल्स वगैरह, इसका सिटिंग जो कैपेसिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। 2 मिनट बैठना भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अक्षय कि 2 मिनट भी वो बैठ जाए। पर धीरे धीरे जो पजल्स थे कि 4 पीसेस से स्टार्ट किया, बड़े बड़े पीसेस, फिर छोटे, और बीडिंग वगैरह, दाल वगैरह जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सॉर्टिंग वगैरह, फिर ड्राइंग विद इन द लाइन। तो इस तरह से इन चीजों से इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इसकी सिटिंग धीरे धीरे बढ़ी। पर ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने का टास्क नहीं था। कई बार तो ये लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। पर हार नहीं मानी, क्योंकि लगने लगा था कि इसके अलावा तो और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें काम तो करना पड़ेगा अगर इसे आगे लेके जाना है। तो इस हिसाब से फिर धीरे धीरे करीब 2-2.5 महीने बाद हमें थोड़ा बहुत इसमें चेंज आना ऐसा लगा। इवन दैट टाइम ही वाज नॉट टॉयलेट ट्रेन्ड, तो वो भी हमने कई जगह, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट भी होना पड़ा इसके बिहेवियर मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि एक जरूरी है हमारे बच्चों के मामले में। स्कूल में जैसे अभी इसके बाद वो स्कूल में आपने डाला होगा, तो क्या इश्यूज फेस किए आपने या क्या इश्यूज फेस किए अक्षय ने, मतलब स्पेशली स्कूल के बारे में वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? जब स्कूल में एडमिशन के लिए हम गए 96 से पहले, ये प्री प्राइमरी में था, लेकिन उस टाइम तक क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि इससे ऑटिज्म में, तो एडमिशन बहुत आसानी से हो गया था। नर्सरी प्रेप वगैरह उसमें ये एक नॉर्मल स्कूल में गया। लेकिन जब 96 में आया उस टाइम तक हमें पता चल चुका था कि ये ऑटिज्म से प्रभावित है। तो जब इसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए हम लेके गए तो वहां हमने जब बताया कि अक्षय के साथ ऑटिज्म है, तो उन्हें तो खैर प्रिंसिपल को भी उस टाइम नहीं पता था ऑटिज्म क्या होता है। उन्हें ये लगता था कि ये पता नहीं क्या दिक्कत है, ये मारेगा दूसरे बच्चों को, पेरेंट्स दूसरे ऑब्जेक्शन करेंगे। तो मैडम जिनमें हिम्मत थी उन्होंने क्लियर बोल दिए। बट
80% जो प्रिंसिपल से हम मिले उन्होंने हमें यही कहा कि हम आपको सोच के बताएंगे, बट उन्होंने फिर कभी बताया नहीं हमें। हमने जयपुर के मान लीजिए शायद ही कोई स्कूल होगा बड़े से लेके छोटा स्कूल जहां हमने विजिट ना किया हो, और हर जगह हमें ऐसे ही रिजेक्शन मिला। बट गॉड इज ग्रेट। हम एक स्कूल में गए, उसका नाम मैं बताऊंगी आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन पब्लिक स्कूल। वहां की प्रिंसिपल थी मिसेस प्रीति शर्मा, और उसी साल वो स्कूल ओपन हुआ था। तो हम केबल टीवी उस टाइम चलते थे बहुत, तो उसमें ऐड आ रहा था। हम उस स्कूल में ये उम्मीद से गए कि इसी साल ये स्कूल खुला है, हो सकता है कि वो एडमिशन कर ले। वहां जाके मैंने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया कि मैडम इस तरह से ही इज अ स्पेशल चाइल्ड और ही हैज ऑटिज्म। तो उन्होंने कहा ये ऑटिज्म में क्या होता है? तो जितना मैं जानती थी, उस टाइम मैं इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं थी, जितना मैं जानती थी उतना मैंने इनको बताया कि वो बोलता नहीं है ढंग से, थोड़ा सा मतलब स्टबर्न है। उन्होंने खुद ने बाहर आकर के इसे देखा तो ये हैंड फ्लैपिंग कर रहा था। तो इसको देख करके वापस वो फिर अंदर गई, और अंदर जाके उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैं इसे एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। आज तक बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन ऐसा बच्चा मेरे सामने पहली बार आया, तो ऐसे बच्चे के साथ अगर मैं काम करूंगी तो ही मुझे लगेगा कि मैं एक प्रिंसिपल के लायक हूँ कि नहीं, कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकूं। और उन्होंने इसे एडमिशन दिया। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इशू आए, छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके साथ ये बैठता नहीं था। तो इसकी एक क्लास टीचर थी नितिशा जी, उन्हें जब हमने सारा बताया, शी वॉज क्वाइट यंग, वो बहुत ही स्कूल गोइंग लड़की थी वो खुद भी। उन्हें जब बताया तो उन्होंने कहा मैं खुद इसके साथ बैठूंगी, इसके साथ टिफिन कैसे लेना है वो इसको सिखाया इन्होंने। दूसरे छोटे छोटे बच्चों के साथ इसको बैठाना शुरू किया ताकि ये कंफर्टेबल फील करे। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे कोई भी बच्चा हो अपना। बड़ों के साथ एडजस्ट होने में हमारे बच्चों को दिक्कत होती है, हमारे बच्चों की नहीं, उन्हें दिक्कत होती है हमारे बच्चों के साथ एडजस्ट होने में। तो लकीली ये बहुत अर्ली एज में पहुंचा था स्कूल, तो वहाँ बच्चे इसको अपने जैसे ही मानते थे। उन्हें तो इस चीज से मतलब ही नहीं था डिसेबिलिटी क्या होती है। और फिर उस स्कूल में इसने धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये इसके साथ स्थिति ये थी कि ये बैठ नहीं पाता था। तो वहाँ क्योंकि मैं भी घर पे काम कर रही थी और वो लोग भी इतने ज्यादा रिजिड नहीं थे इसे लेकर के। फिर ब्लैक बोर्ड जो था उस पे जो उसको लिखा जाता था वो ये तो बिल्कुल भी नहीं उतार पाता था। पर स्कूल में जब हमने डाला है तो आगे पढ़ाना तो था ही, वहां से फॉर्मेलिटी के लिए तो हमें भेजना नहीं था। तो मैंने फिर एक, जब इससे मुझे कुछ आंसर मिलते नहीं थे क्योंकि स्पीच इसकी डेवलप हुई नहीं थी, हम लोग कोशिश कर रहे थे, मैं इससे इवन इसके क्लासमेट जो थे उनके नाम लेके आती थी, प्रिंसिपल से पूछती थी और वो नाम भिजवा देती थी मुझे डायरी में। फिर मैं उन बच्चों के नाम लेके इससे पूछा करती थी एक दो कि क्या ललित आया, सॉरी क्या ललित आज आया था? तो इससे कोई जवाब नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैं पूछती रहती थी इससे, फाइनली इसे पता चलने लगा ललित कौन है, क्योंकि क्लास में भी इसको बताया जाता था ये ललित है। ललित का नाम मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि वो एक ऐसा इसका दोस्त रहा जिसने इसका साथ 10वीं तक निभाया। अगर आप लोग तारे जमीन पे देखी हो तो ईशान का जैसे एक बडी था ना, वैसे ही अक्षय का ललित, जबकि वो खुद बहुत छोटा था। तो मैं उस बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना वो मैं भूल नहीं सकती आज भी। फिर उसके बाद जब ये ब्लैक बोर्ड से उतार नहीं पाता था तो मैंने इनकी जो क्लास टीचर थी उनको एक रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा आप इसकी जो डायरी है उसमें आप नोट कर दीजिए कि रोज का क्या काम आप क्लास में करवा रहे हैं, सो दैट मैं वो चीजें घर पे मैं करवा सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो ये इजी हो गया था। 1 to 1 देखिए मेन स्ट्रीम स्कूल में उस टाइम स्पेशल एजुकेटर की तो बात ही नहीं होती थी। 96 97 में आप सोच ही नहीं सकते कोई स्पेशल एजुकेटर जैसा ऐसा कुछ था। उसके बाद दो ये डायरी में वर्क लेके लिख के इसको दिया। कैसे हैंडल होते थे? वही मैं बता रही हूँ कि मैं फिर वो वाला काम जो इसे स्कूल में कराया जाता था वो मैं घर पे इसे कराना शुरू किया। बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए कि मैं इसको कैसे सिटिंग दूं, इसको समझाऊं कैसे। कई बार तो लगता था ये कभी पढ़ नहीं पाएगा, पर हार नहीं मानना था मुझे। और वही हुआ धीरे धीरे। अक्षर लिखना इसने, मतलब वर्ड्स, फिर लेटर पे आया, फिर मतलब जो फोनिक्स है, मतलब ये सब आज इतना ऐसा लगता है कि कभी ऐसा था। और आज ये रीडिंग करता है फ्लुएंटली, लेकिन ये बहुत लंबा
दौर रहा और इतना ज्यादा पेशेंस के साथ काम करना पड़ा, और वहाँ स्कूल से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा था। मतलब वी आर वेरी थैंकफुल, और हम आज भी इस चीज को एडमायर करते हैं। और मैं इस चीज को खास तौर पे यहाँ बोलना चाहती हूँ कि मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर जो हमारे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन स्पेशल स्कूल। मैं स्पेशल स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे सीवियर बच्चे जिन्हें ज्यादा केयर की जरूरत है, उनके लिए स्पेशल स्कूल ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो माइल्ड हैं हमारे बच्चे की, वो अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो वो एडजस्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए मेन स्ट्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए उस टाइम जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, 10वीं में जब ये आया, बहुत लंबा टाइम था, तब हमें ये पता चला कि स्पेशल बच्चों को कुछ सीबीएसई की तरफ से रिलैक्सेशन मिलते हैं। पर हमारे सामने तो उस टाइम तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं था। फिर हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में उस टाइम मेंटल रिटार्डेशन लिखा जाता था, ऑटिज्म का उसमें मेंशन नहीं होता था। हाँ, और तब नहीं था वो वर्ड। तब नहीं था। जी 99 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आ चुका था, और इसके अंदर ऑटिज्म को एक डिसेबिलिटी की तरह से माना गया था। तो जब मैं इसके फर्स्ट टाइम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हमने यहाँ के जयपुर के साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट है, एसएमएस हॉस्पिटल, वहाँ अप्रोच किया, तो इसका आईक्यू टेस्टिंग हुआ, और वहाँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको एमआर लिखा। तो मैंने उस टाइम सबसे पहला ऑब्जेक्शन उनके सामने ये उठाया था कि सर, हिज डिसेबिलिटी इज ऑटिज्म, तो प्लीज मेंशन ऑटिज्म। उन्होंने कहा ऑटिज्म जैसी कुछ चीज तो हम लिख नहीं सकते। फिर मैंने उन जो डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे भेजा था, उन्हें मैंने एक्ट बताया 99। तो उन्होंने उस साइकेट्रिस्ट को, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उनको फोन करके बोला कि इनकी मदर तो वो कानून जानती है, तो इसलिए आप ऑटिज्म जरूर लिख देना, वरना फिर कोई इश्यू हो सकता है आगे। तो उन्होंने एमआर विथ ऑटिज्म ऐसे लिखा। बट ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑटिज्म लिखा तो गया। पर इस चीज को लेकर के फिर हम ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारे राजस्थान में, हमने वहां पे एक अपील करी। और ये वाला जो मैटर था, ये अखबारों में भी आया था कि जो ऑटिज्म में प्रभावित होते हैं नहीं किया जाता उनकी डिसेबिलिटी में। इस बात मतलब लगभग 4 साल लगे इस वाद को, पर फाइनली जयपुर में ऑटिज्म लिखने की शुरुआत इस केस के बाद से हुई थी। उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, और फिर ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है यहाँ की तरफ से एक लेटर इशू हुआ कि ऑटिज्म के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, और अक्षय का सर्टिफिकेट पहला बना जिसमें किया गया। तो ये हमारा पहला स्ट्रगल था। मतलब स्कूल में स्ट्रगल किया, लेकिन वो ठीक है, हमें मिल गया। लेकिन पहला स्ट्रगल जब हम सिस्टम से टकराए, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था। स्कूल में क्या हर साल प्रमोट कर दिया गया ऐसा, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हुए वैसे स्कूल में कि स्कूल स्मूथ रहा उस बारे में? नहीं, स्मूथ कुछ भी नहीं रहा। अक्षय के लिए कुछ भी स्मूथ कभी नहीं रहा। हमें हर जगह स्ट्रगल करना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ कि आज अगर कोई बच्चा आगे इस तरह से बढ़ है कि हाँ, एक बच्चा एडीएसडी भी आया या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आया, लेकिन 96 में यू कैन इमेजिन कि तब ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारे बच्चे कहीं थे ही नहीं पिक्चर में कि वो आगे कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल स्कूल में भी इन्हें यही समझा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा स्पेशल एजुकेशन दे दी जाए इन्हें, वो स्पेशल ट्रेनिंग दे दे। एजुकेशन पे, एकेडमिक्स पे हम क्यों फोकस करें। पर हमारा ये था कि इसे बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ मेहनत की, तो मेरे लिए ये रहा था कि वही मेरा एम था कि मुझे जैसा बेटी के साथ किया वैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो स्कूल में बहुत इशू आते थे। स्कूल में इसके जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो जो बड़े बच्चे थे आपस में, जैसे बच्चों की लड़ाइयाँ होती है वैसे इसकी भी होती थी। तो ये तो आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि हमारे बच्चों की छोटी से छोटी चीज को हाईलाइट किया जाता है, और बिल्कुल। उनके बिहेवियर पे टारगेट करते हैं हम कि ये he is behaving because he is special, तो he should not be in mainstream school, he should be in some special school। ये हमें हमेशा सुनना पड़ता है। यही इसके साथ हुआ। इवन जो मैनेजमेंट कमेटी थी वो भी इसके अगेंस्ट हो रही थी कि नहीं, इसकी वजह से दूसरे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करने लगे हैं, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल जो इनकी थी, वो एक जिसे कहते हैं चट्टान की तरह से इसके साथ खड़ी हुई थी कि ये जाएगा तो फिर मैं भी जाऊंगी। पर
उनकी वजह से वो इस स्कूल में अक्षय एडजस्ट रहा और इसने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता गया। ये 1-2 दिन का स्ट्रगल नहीं है, धीरे धीरे काउंटिंग कैसे सिखाना है वो मैंने कैलेंडर से सीखा है, क्योंकि बुक से ये सीख ही नहीं पाता था। इसको कुछ नहीं, मुझे लगता है ये कभी काउंटिंग नहीं सीखेगा। तो फिर इसको कहीं जैसे जाते थे तो इसको बड़ी एंजाइटी रहती थी, मुझे कहीं जाना है, तो मैं इसे डेट्स से बताने लगी। जैसे ये उस टाइम डेट्स को समझता नहीं था कि 1-6-16, जब 16 आएगा तब अपन चलेंगे बाहर। फिर धीरे धीरे मैं काउंटिंग पे लेके आती थी कि 1 2 3 4, इस तरह से मतलब बहुत सारी हमने टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी जो मुझे समझ आता था वो मैंने इस्तेमाल की कि किसी तरह से ये पढ़ाई सीखे। ऐसे ही छोटे छोटे जो घर के कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स है उनके जरिए इसको मतलब रिकॉग्निशन कराए कि ये क्या चीज है, ये फैन है, FAN। तो ऐसे ही फोनिक्स वगैरह, ये बहुत लंबा स्टेज है जो हमने क्रॉस किया। कलर्स अगर सिखाए तो जो रियल ऑब्जेक्ट थे उनके जरिए, आज अगर रेड कलर लिया तो घर में हर चीज रेड ही रेड दिखाती थी ताकि इसके दिमाग में फिट हो जाए कि ये रेड है। और जब लगता था कि रेड क्रॉस कर लिया इसने तो फिर दूसरा कलर ऐड किया, ऐसे हर चीज के लिए। काउंटिंग और ये जो मैथमेटिक्स का इसका इंटरेस्ट मैं बताऊं, जब ये स्टार्टिंग में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसकी सिटिंग बिल्कुल नहीं थी। पर ये टीवी जब देखा करता था तो मैंने ये नोटिस किया था, जब ये 6-7 साल का था तो ये टीवी में जब क्रिकेट मैच आते थे बहुत ही मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर के मैच देखा करता था। मुझे लगा इसका इंटरेस्ट तो लग रहा है क्रिकेट में है, जबकि क्या समझ आ रहा था क्रिकेट। फिर उसके जरिए मैं इससे फिर काउंटिंग पे मैं उससे इसे फायदा हुआ। मैंने उस टाइम जैसे ओवर हुआ करते थे 60, उस टाइम 5 डे मैच ज्यादा होते थे, तो मैं इससे पूछती कि ये 60 ओवर है, एक ओवर में होते हैं 6 बॉल, तो 2 ओवर में कितना हुआ, तो समझ नहीं आता। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन सीखा इसने कि एक ओवर में 6 बॉल, तो 2 ओवर में 6 × 2 12 बॉल्स। इसी तरह से जब मतलब कोई टीम होती थी तो वो एवरेज में निकालना इसे सिखाया, क्योंकि वो इसका इंटरेस्ट एरिया था क्रिकेट। उस इंटरेस्ट एरिया से मैंने इसकी पढ़ाई को जोड़ दिया और फिर मैथमेटिक्स में इसने इसको समझ आने लगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, एवरेज निकालना, डिवीजन, कि इतने ओवर में हमें इतना रन बनाना है, तो बताओ एक ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा, इतना तो जरूरी है। तो ये इसकी इस तरह से मतलब लर्निंग धीरे धीरे बढ़ी। तो इसके इंटरेस्ट से हमने इसकी पढ़ाई को जोड़ा, क्योंकि ऐसे हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता है कि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। दी बाकी जैसे स्पोर्ट्स और उसमें इनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर बिहेवियर आया, या फिर उन्होंने कैसे इंटरेस्ट आपको दिखा, ये जैसे स्विमिंग में करना चाह रहे हैं या ये इतना, तो वो आप कुछ इसमें बता दें। बिहेवियर का तो ये है कि बिहेवियर मैंने बताया इश्यूज आए, लेकिन स्कूल के कॉपरेशन की वजह से वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट होते गए। स्पोर्ट्स वाला है तो स्पोर्ट्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था स्पोर्ट्स की जगह, लेकिन इसके स्कूल में एक पॉलिसी थी कि जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो हर बच्चा, कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। जैसे जो दौड़ सकता है, अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स में आएगा, जो म्यूजिक में है वो म्यूजिक में आएगा, अदरवाइज कोई ड्रामा होगा तो उसमें कोई रोल उसे दे दिया जाएगा, वो उसमें अपना अपीयरेंस जरूर देगा। इसको हमने मुझे लगता था कि कहीं पे भी हमारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इम्पेयर्ड होती है, बट कुछ तो ऐसा होता है जहाँ वो इंटरेस्ट शो करते हैं। तो मैंने इसे कैसियो सिखाना शुरू किया था। ये साउंड को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, इसको लगता था कि कानों पे जब ये मारता था इसको कोई भी साउंड बर्दाश्त नहीं होता था। तो हमने इसका क्या डिसेंसिटाइजेशन शुरू किया कि इसकी वजह से ये तो पॉसिबल नहीं है कि घर में कोई गाना नहीं चले, म्यूजिक नहीं बजे। इवन हमारे जो परिवार के लोग थे वो दिवाली पे पटाखे तक नहीं छुड़ा पाते थे। मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ा इश्यू होता है ये, कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाएं। तो हमारे जो पेरेंट्स, जो फादर इन लॉ थे, उनका ये कहना था कि अगर परिवार वाले फटाके नहीं छुड़ाएंगे तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, बच्चा अगर परेशान हो रहा है तो हम ना शोर करें। पर मैं फिर मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि इसकी वजह से सारे घर वाले बिल्कुल उदास बैठे रहते हैं, तो क्यों ना हम इसको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाएं। फिर मैंने धीरे धीरे म्यूजिक जैसे है बहुत धीमी धीमी आवाज में बजाना शुरू किया, और उस टाइम इसे मैं पकड़ के बैठ जाती थी ताकि अपना सर नहीं फोड़ सके, क्योंकि वही इसका पहला और आखिरी हथियार होता था।
धीरे धीरे जब इसको टॉलरेट, इसको लगा कि हाँ धीरे धीरे अब ये एडजस्ट होने लगा है, बहुत टाइम लगा, फिर धीरे ग्रेजुअली उस जो वॉल्यूम है उसको हमने थोड़ा बढ़ाना शुरू किया कि धीरे धीरे ये चीजें यूज टू हो। ऐसे ही जो फटाके थे तो हम फुलझड़ी से, कि मैं इसको अपने साथ लेके बैठ जाती थी, फुलझड़ी में जलाती थी ताकि इसका डर खत्म हो। फिर छोटे छोटे जो चिटकियां होती है वो बजाना, और इसको मेरे साथ कंफर्टेबल फील होता। धीरे धीरे ये डिसेंसिटाइज होता गया उन चीजों को लेके, महीनों लगे, लेकिन आज मतलब उस वजह से हमने इसकी लाइफ से साउंड वाला जो पार्ट था वो हटाया नहीं, बल्कि इसको नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाने के लिए डिसेंसिटाइज किया, ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज। ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और आज ये खुद फटाके छुड़ाता है, बहुत जबरदस्त डांसर है, फुल म्यूजिक पे ये गाने बजा करके खुद डांस करता है। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो ये बहुत जरूरी होता है, और मैंने भी ये महसूस किया था कि इसकी लाइफ में, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें डालना चाहिए जहाँ पे ये बच्चे अपनी जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ा सके, और इन्हें कुछ एक टास्क मिले लाइफ में कि ये करें तो करें क्या। हमारे जो मेरी जो डॉटर थी वो स्विमिंग के लिए SMS स्टेडियम जाया करती थी। मेरे हस्बैंड इसको भी लेके जाते थे, पर ये पानी से बहुत ज्यादा डरता था। इसको अंधेरे से इतना डर लगता था, इसको कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता था, जो रियल डेंजर है उनसे नहीं लगता था, इसे अंधेरे से डर लगता था, इसे पानी से डर लगता था। ऐसे जो फॉल्स फियर होते हैं वहां तो ये डरता था, और जो रियली जो बहुत थ्रेटनिंग होते हैं उनके साथ ये बहुत कंफर्टेबल था, और हमें उनसे डर लगता था कि ये कहीं कीड़ा ना पकड़ ले। तो जब ये स्विमिंग के लिए मेरे हस्बैंड इसे लेके जाते थे तो ये पानी में जाना ही नहीं चाहता था, बहुत बुरी तरह से अपना रोना, सर फोड़ना, और पूरा अपनी फेस को नीला कर लेता था, मतलब ब्रीद ही जैसे इसकी आ ही नहीं रही। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि वो खुद भी स्विमिंग पूल उतर गए और इसको अपने साथ ले लिया, कि फादर है साथ में तो अब थोड़ा डरेगा चिल्लाएगा, क्योंकि और तो कोई सिखाएगा नहीं, तो फादर साथ में है तो कितना चिल्लाएगा, साथ में तो हम है ही ना, पकड़ तो रखा है ये धीरे धीरे टायर से। फिर वो साथ है तो इसको लगता था कि हाँ ये मेरे साथ है, बिल्कुल उनका हाथ पकड़ लेता था। पर धीरे धीरे ये काम बहुत धीरे धीरे हुआ। एकदम से अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा बच्चा फ्रीज कर लेता अपने आप को, तो हमें वो भी स्टेज पे नहीं पहुंचाना। धीरे धीरे स्विमिंग, पानी में जब उतरना, पैर डालना शुरू किया, फिर स्विमिंग भी करना शुरू किया। और अभी आपने इसका वीडियो देखा, अभी 2020 के अंदर जो हमारी स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ये स्विमिंग में इसने 2 गोल्ड जीते। फ्री स्टाइल में 50 मीटर में गोल्ड, और 100 मीटर में उसमें भी इसने गोल्ड जीता। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं जो हमने बहुत धीरे धीरे मतलब पार किए। और 3 चीजें जो मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा मेरे मामले में काम आई, और वो सभी के लिए शायद अगर हम मानते हैं तो, पहली चीज है कि एक्सेप्टेंस। जब मुझे पता चला कि इसे ऑटिज्म है, ठीक है, हम बहुत रोए, बहुत टूटे बिखरे, पर फिर मान लिया कि हाँ ठीक है तो है, अब इसको कैसे पार पाना है, इस चीज को साथ लेकर के। दूसरी चीज, पेशेंस रखा महीनों। कई बार लगता था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, और उसका रिजल्ट फिर आना शुरू हुआ। कंसिस्टेंसी तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमने 1 महीना मेहनत किया, लगा रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं किया। कंसिस्टेंसी की लगातार करते गए जब तक कि रिजल्ट नहीं आ गया, हमने हार नहीं मानी। तो इन 3 चीजों से जो आज अक्षय है वो इन 3 चीजों की वजह से है, और बिहेवियर मैनेजमेंट वगैरह तो हमने साथ किया, वो सब इसका हमारा पार्ट था। सिस्टर का कुछ क्या रोल, कैसा रोल या क्या रहा है उनकी डेवलपमेंट में, मतलब कैसे साथ दिया उन्होंने? सिस्टर का? हाँ सिस्टर का तो बहुत बड़ा रोल है, हमारे सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बच्चों के मामले में। इसकी जो सिस्टर है वो इससे 5 साल बड़ी है, तो उसे देख करके तो ये मोटिवेट होता था। इवन जब ये बोलना भी नहीं जानता तो जो वो करती थी वही ये करता था। इन लोगों की तो इतनी भयंकर आपस में लड़ाई होती थी। जब ये उस टाइम आता था, अपने बॉर्नविटा क्विज आया करता था, और उधर अपने शक्तिमान आया करता था। इसे था शक्तिमान का शौक, और मेरी जो डॉटर है उसे था बॉर्नविटा क्विज का शौक, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वो था। तो यहाँ ये चाहता था कि मैं शक्तिमान देखूं, तो आपस में इतना ज्यादा लड़ते थे। तो वो ये हर चीज में उससे कंपटीशन करता था कि अगर ये टीवी देख रही है तो ये ना देखे, मैं देखूं, और इसी तरह से कोई काम कर रही है तो ये कर रही है तो मैं भी करूंगा।
जब धीरे धीरे इसकी स्पीच डेवलप हुई और इसके साथ मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने लगी, तो इसे लगता है, मैं इसको कहती थी, देख अक्षय, जिस तरह से अपनी गुड़िया पढ़ रही है ऐसे आप भी पढ़ोगे ना। हाँ मैं तो इस तरह से गुड़िया का बहुत बड़ा रोल रहा, उसको देख करके इसने बहुत कुछ चीजें सीखी। और स्टार्टिंग में मेरी डॉटर को बहुत ज्यादा ये इश्यू लगता था कि मैं इसी पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। और ये हमारे साथ बहुत ज्यादा इश्यू होता है कि जब हमारे कोई स्पेशल बच्चा आता है तो हमारे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो इग्नोर्ड है, पर आज उसे ये बात समझ आती है कि वो इग्नोर नहीं किया था, लेकिन ये इसकी जरूरत थी कि हम इस पे ज्यादा ध्यान हमें देना था। तो डॉटर की वजह से इसको इतना मोटिवेशन मिला हर चीज में, ये जो उसे करना है वही से करना है। उसने कंप्यूटर सीखा तो इसने कहा कि मैं भी सीखूंगा, और इसने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। मोबाइल तो डॉटर के पास है तो मुझे भी सिखाओ मोबाइल। पढ़ाई को लेकर के इसके अंदर ये था कि जब ये 10th में हमारे साथ बहुत ज्यादा इसके फिजिकल जो इश्यू थे, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज लेकर के बहुत आए 10th में, क्योंकि तब ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा थी हमारे स्पेशल बच्चों को लेकर के। और सामना जो इसने किया, ये गुड़िया बहुत बड़ा, मेरी डॉटर है, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है इसकी लाइफ में। आज भी कोई बात होती है तो ये वही कहता है कि जैसे गुड़िया ने किया वैसे ही मैं भी। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, हालांकि उसने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, बट इसके अंदर जैसे गुड़िया दीदी लेक्चरर बनी वैसे मैं भी जॉब करूंगा। तो सिबलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है अपने बच्चों के लिए। मैम स्पीच क्लैरिटी कैसे आई? हम प्लीज क्या हम अक्षय से बात कर सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। हेलो अक्षय। हेलो। आपकी अचीवमेंट्स और ये हम बहुत मोटिवेट हुए हैं। आपसे थोड़ी बातें जानना चाहते हैं कि आपको कैसा स्कूल जाना पसंद था, पढ़ाई करना वगैरह पसंद था आपको बचपन में? हाँ, आपको क्या लगता था स्कूल में कि कैसे परेशानी लगती थी, क्या अच्छा नहीं लगता था? फिर पहले स्कूल में 2008 में जब 10th के CBSE का टाइम पे था, तब तक तो 10th में मुझे है ना सीवियर स्ट्रेस में आने लग गया था 10th में। अच्छा, आपको डर लगता था पढ़ाई का उसमें? फिर मेरे को है ना 10th CBSE में मेरे को मैथ्स नहीं आती थी, मैथ्स में दिक्कतें बहुत आती थी। और स्कूल में फ्रेंड्स के कैसे लगते थे आपको? और स्कूल में फ्रेंड्स तो सही लगते थे, और मेरी मम्मी ने शोधारा भी कराया था। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है, मतलब वहाँ अभी? स्पोर्ट्स में शॉर्ट पुट। अच्छा, स्विमिंग अभी बहुत अच्छा लगता है? हाँ, स्विमिंग वो भी। अभी कुछ परेशानियां आती है आपको स्पोर्ट्स में? नहीं। आपको सोशलाइज होने, मतलब किसी और से बातों में या फ्रेंड्स के साथ कुछ परेशानियां आती है अभी? नहीं। अब आजकल क्या क्या करना पसंद करते हो आप? हाँ, मैं घर पे डांस कर लेता हूँ और टीवी पे क्रिकेट भी देख लेता हूँ, और सब देख लेता हूँ बाकी। अरे वाह, डांस करना बहुत पसंद है, वेरी गुड। हाँ हाँ, और मैं ना डांस म्यूजिक चला के डांस करता हूँ फुल वॉल्यूम पर। अरे वाह, हमने देखा है अक्षय आपका डांस, आप बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। और आपका कीबोर्ड वगैरह हमने वो भी वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगा। और आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अच्छी बात है, बताइए ये बारे में। ये पहले मैंने स्टेट टूर्नामेंट भी जीता था, मैंने नेशनल टूर्नामेंट भी जीता था, और डांस का स्पेशल प्राइज भी जीता था। जोर से बोलो थोड़ा। और डांस का स्पेशल प्राइज भी जीता था पहले, और रोल मॉडल अवार्ड भी मिला था पहले। हाँ, आपको खुशी सबसे कब हुई थी ज्यादा? मतलब क्या आपने किया तो आपको बहुत खुशी हुई, कि आपने स्विमिंग किया आपको अवार्ड मिला, या फिर डांस आया? किस चीज से आपको बहुत खुशी हुई? फिर मेरे को 2018 दिसंबर में नेशनल अवार्ड मिलने से हुआ था खुशी मेरे को। अरे वाह। और और हाँ,
हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलिए। और मुझे केविन कैट मास्टी एबिलिटी अवार्ड मिला था, जयपुर रत्न अवार्ड भी मिला था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे आप क्या करना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो, और आगे क्या करना चाहते हो? और फिर अब तो मैं आगे मैं तो आगे केबीसी में जाना चाहूंगा। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आप उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कुछ जनरल नॉलेज पढ़ते हैं? हाँ, फिर मैं तो जब टीवी पे केबीसी प्रोग्राम आता है, मैं प्ले अलोंग उसको देख के खेल लेता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। और आप क्या बताना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में? अभी कौन कौन फ्रेंड्स हैं आपके? और अभी मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कौन है आपके फ्रेंड्स, नाम है कोई? फ्रेंड्स है ना आपके? कि पहले ए स्कूल में फ्रेंड्स तो लाली सिंगल था, अच्छा, अभी आप आपने नया जॉब? और वो मेरी हेल्प ही करता था, लली सिंगल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आपका नया जॉब आपने ज्वाइन किया है, वो हम्म, कैसा लग रहा है आपको? वो अच्छा सही लग रहा है मुझे। बहुत खुशी हो रही है आपको वहां पे काम करने में? हाँ अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। वेरी गुड। और और पहले इसके बाद मुझे 2017 में स्टेट अवार्ड भी मिला था, पैरा एथलीट भी जीत लिया था। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। हम लोग बहुत सुन के बहुत खुशी हो रही है अक्षय, कि आपने इतना प्रॉब्लम्स के बाद भी काफी अच्छे से लाइफ में किया है, और आपको आगे के लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रतिभा जी, और मैंने 800 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था पहले 2017 में। हाँ 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 हाँ। प्रतिभा दी, आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगी क्वेश्चंस अक्षय के लिए? तो आप भी एज अ बेटर आप बता सकती है। अक्षय, आपको सबसे बुरा कब लगता है? हाँ, प्रतिभा जी, मेरे को है ना, पहले स्टेडियम में मेरे को है ना शॉर्ट पुट फेंकने पे, फिर मेरे को तो ज्यादा मीटर जाता नहीं था, इसी की वजह से आती थी प्रॉब्लम मुझे। और अगर आपके साथ कोई बिहेवियर, आपको कब ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, तो क्या लगता है फिर आपको? पहले मेरे को है ना यूनिवर्सिटी में महाराजा कॉलेज में लाइब्रेरी में पहले प्रॉब्लम इसी लग गई थी, क्योंकि मेरे से कोई डांटता था मुझे। अच्छा, कॉलेज में डांटता था आपको? नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो आपने क्या किया उस समय फिर? फिर पहले स्टूडेंट की लाइब्रेरी में जाता था। अच्छा, गुड। दीदी, आप कुछ और ऐड करेंगी? अक्षय को तो अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आप कुछ भी पूछे। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और उनसे बात करके दीदी बहुत ही अच्छा। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ऐसा टाइम था कि अपनी तकलीफ बता भी नहीं पाता था, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीच थी ही नहीं, जो भी थी, जी, फिर बहुत मुश्किल था इसके लिए एक्सप्रेस करना अपने फीलिंग्स। और आज ही अपना सारी दुख तकलीफ भी अगर किसके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो ये बता देता है। तो बिलीव, हाँ हाँ, अगर हम अपने एफर्ट जारी रखेंगे तो पता नहीं कितने, अक्षय ही कोई एक इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हमारे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ एक चैलेंजेस जो आए, मैं अगर हर्षाली अपने पास समय है तो मैं अभी बताना चाहूंगी कि कितनी ज्यादा हर्डल्स के साथ अक्षय आगे बढ़ा है। हाँ, बताइए ना दीदी, आप बिल्कुल कैरी ऑन 10th कीजिए। में जैसे मैंने आपको बताया, 10th में जब ये आया था तो उस टाइम जो स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे, उनमें ऑटिज्म का कहीं नाम ही नहीं था। तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जो कि कौन सी ईयर में अक्षय आपने 10th किया था? मैंने 10 2009 में किया था। 2009 में। तो 2008 में इनके फॉर्म भरे गए थे, तब हम जो इसकी क्लास टीचर थी उन्होंने बताया था कि मैडम मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, पर्सन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए कुछ सीबीएसई ने छूट दे रखी है। उस टाइम तक मैं कानून वगैरह कुछ भी नहीं जानती थी, आज तो सारा सब कुछ हम जानते हैं, क्या रूल्स है और क्या कानून है। तो मैंने उस टाइम फिर वो निकाला सीबीएसई की गाइडलाइन, लेकिन उसमें ऑटिज्म का कहीं नाम ही नहीं था। फिर हमने सीबीएसई को करस्पॉन्डेंस किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अक्षय जो है, ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड,
हैविंग ऑटिज्म, तो आप इसे जो दूसरे बच्चों को, आप जो विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और फिजिकली चैलेंज बच्चों को मिलते हैं, स्पेशल एग्जाम्शन टाइम को लेकर के, स्क्राइब को लेकर के, और जो सिलेबस को, करिकुलम को लेकर के, लैंग्वेज एग्जाम्शन मिलती है इनको, और जैसे कंप्यूटर ले सकते हैं ये मैथ्स को छोड़ करके, तो इस टाइप के जो एग्जाम्शन है वो इसे दिए जाएं। तो वहां से हमें ये रिप्लाई आया था कि ऑटिज्म को ऐसा कोई रिलैक्सेशन मिलता नहीं है। फिर दोबारा प्रिंसिपल और हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि ये एक बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, आप इस चीज को कंसिडर करिए। तो उन्होंने इसको अपनी जो एजीएम होती है उसके अंदर रखा, और अक्षय वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसके बाद ऑटिज्म को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। और इसे जो 10th जब बोर्ड में ये आया तो इसे वो सारे एग्जाम्शन मिले और वो सारे रिलैक्सेशन मिले जो हमारे स्पेशल बच्चों को पहले मिलते थे, फिजिकली चैलेंज को मिलते थे। तो इससे मतलब मुझे लगता है कि ये टॉर्च बियरर रहा हर इशू में जो भी हमने स्ट्रगल किया, कि इसकी वजह से फिर आगे के लिए जो बच्चों के रास्ते थे वो खुले। सेम चीज इसके साथ तब हुई जब कॉलेज एडमिशन हुआ जयपुर में, क्योंकि ये पहला था जो कॉलेज लेवल तक आया। तो यहाँ हमने, हम मानसरोवर में रहते हैं, तो करीब 3-4 कॉलेजेस से हमने कांटेक्ट किया। एक एग्जीबिशन लगती है यहाँ पे हर साल, जिसके अंदर सारे कॉलेजेज, एजुकेशनल फेयर होता है जिसमें सारे कॉलेजेज अपने एचआरए को लेकर के बैठते हैं और आप अपने एडमिशन के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने हर जो एचआरए उससे कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हमें कॉलेज बुलाया, उन्हें हमने बता दिया था कि इसके साथ क्या इश्यू, कॉलेज बुलाया, लेकिन वहां बुला के जब इससे मिले और हमने जब सारी बात बताई तो उन्होंने इसे मना कर दिया एडमिशन देने से। फिर अब हमारे सामने दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इसे इग्नू से कॉलेज कराते, मतलब ग्रेजुएशन कराते। बट मेरे सामने ये आया कि जब ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि ऐसे बच्चों को स्कूल में, वो कॉलेज में एडमिशन दिया जाए, तो हम क्यों ना इस रास्ते की जो बैरियर है इसको हटाएं। तो आई अप्रोच टू कमिश्नर डिसेबिलिटी कोर्ट। हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो भी हैं, डिसेबिलिटी से अफेक्टेड पर्सन, उनके लिए कोर्ट होती है हर स्टेट के अंदर, जहां आप अपने कोई ग्रीवेंस है तो आप वहां पे अपना केस रजिस्टर्ड करा सकते। तो हमने, वो फर्स्ट था जब हमने अपना केस रजिस्टर्ड कराया, और वहां पर फिर ये जो कॉलेजेस थे, 3 कॉलेजेस को नोटिस इश्यू हुए, और ये मैटर दैनिक भास्कर है राजस्थान का एक बहुत बड़ा अखबार, उसमें आया, और उसकी हेडलाइन ये थी कि ऑटिज्म का किरदार निभाने वालों को अवार्ड और पीड़ितों को तिरस्कार। उस टाइम माई नेम इज खान फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने ऑटिस्टिक पर्सन का किरदार निभाया था और उसे कई अवार्ड भी मिले थे। तो उसमें यही था कि जो ऑटिज्म का किरदार निभा रहे हैं उस पे तो आप अवार्ड दे रहे हो, लेकिन जो रियल पर्सन विद ये ऑटिज्म डिसेबिलिटी है वो आज धक्के खा रहे हैं। तो इसके बाद एक कॉलेज सामने आया था, स्टैनी मेमोरियल पीजी कॉलेज, वहीं मानसरोवर में, और उसने फिर इसे एडमिशन दिया। और उसके बाद कमिश्नर कोर्ट से जब नोटिस इश्यू हुए, फिर ये गाइडलाइन में आ गया कि इन बच्चों को आप एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकते। तो वहां पे भी एक मतलब टॉर्च बियरर रहा कि बच्चों के लिए रास्ते खोले। और उसके बाद इसने अपनी एक हिस्ट्री बना दी। 2014 में इसने कॉलेज अपना पूरा किया। सेकेंड ईयर में इसने हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड, मतलब पूरे कॉलेज में सारी जितनी भी, चाहे से वो ह्यूमैनिटी हो या फिर साइंस हो या कॉमर्स, उन सारी ब्रांचेस में ये सेकंड हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड लिया था इसने, नॉर्मल इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ के। और 2014 में जब इसने ग्रेजुएशन किया तो ये राजस्थान का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना, और शायद जो हमारी जानकारी है कि इंडिया में 2014 में ये पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना। तो इस तरह से हर जगह हमें टकराना पड़ा सिस्टम से और रास्ते खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पर मुझे खुशी है कि उस संघर्ष के बाद इसका तो रास्ता खुला ही, और बच्चों का भी खुला। सेम इशू रिजर्वेशन को लेके आया, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन को लेके 2011-12 में मुझे पता चल चुका था कि गवर्नमेंट जॉब में फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ऑटिज्म को कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिर हमें लगा कि अब व्हाट नेक्स्ट, पढ़ाई तो कर ली लेकिन आगे के रास्ते तो बंद हैं, तो वो रास्ते भी तो खोलना जरूरी है। उस टाइम तक पूरे देश भर में नए कानून की बात चल रही थी, जो 2016 में एक नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। इसको लेकर के जगह जगह सेमिनार हो रही थी और जगह जगह हम अपने रिप्रेजेंटेशन देते थे।
तो राजस्थान में कमिश्नर से लेकर के जो मिनिस्टर, सीएम, राज्यपाल, यहाँ तक हमने अपनी बात पहुंचाई। सेंट्रल में भी हमने ये बात पहुंचाई। सॉरी, जो चीफ कमिश्नर और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वहां तक हमने इस इशू को पहुंचाया और वहां से भी इस चीज के ऊपर हमें पॉजिटिव रिप्लाई आया। फाइनली जब कुछ भी नहीं हुआ तो 2015 एंड में हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि जब आपने 2000 जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसमें ऑटिज्म को एक डिसेबिलिटी मान लिया है, तो अब ये बच्चों के लिए आगे के लिए रास्ते कब खुलेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू हुए। इवन जब हमारी एप्लीकेशन लगाई थी हमने कोर्ट में, तो वो जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुई, फाइल हमारी आई, तो वहां जज का ये कहना था कि कि सरकार ने कुछ सोच के ही तो इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया होगा, अब तक नहीं है तो हम क्यों इसको, जो इसकी पिटिशन है उसको एक्सेप्ट करें। तो वहां पे जो हमारे लॉयर थे उन्होंने इसकी कटिंग्स वगैरह दिखाई जो अखबारों में छपी थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतने संघर्ष के बावजूद यहाँ तक पहुंचा है, आगे अगर उसके लिए रास्ते नहीं खुलेंगे तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो निराशा का माहौल ही जागेगा। फिर हमारी जो पिटिशन थी वो एक्सेप्ट हुई और उसके बाद जब नोटिसेस जारी हुए और उधर केंद्र में बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल है, ये सिर्फ हमारा ही स्ट्रगल नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट जो 2016 के कानून जो आज बना है उसके ऊपर काम कर रहे थे और फाइनली ऑटिज्म को 1% रिजर्वेशन मिला। और राजस्थान में फिर उसके बाद क्योंकि नियम लागू नहीं हो रहे थे, नियम बने ही नहीं थे, लागू होना तो बहुत दूर की बात है, जबकि 6 महीने में बनाने थे, तो यहाँ जनहित याचिका मुझे दायर करनी पड़ी 2017 के एंड में। और उसके बाद राजस्थान में नियम बने 2018 के अंदर। हमें मतलब उसको जितनी भी वैकेंसी निकलती थी हर बार हमें हाईकोर्ट में जाके याचिका दायर करनी पड़ती थी और वहां से मिलता था कि ऑटिज्म कैटेगरी में करते हुए एग्जाम देने की अनुमति दी जाती है। और फिर 13 केसेस हमारे हाई कोर्ट में आए, एक कैट में था और 12 केस हाई कोर्ट में हमें। तो दिस इज आवर स्ट्रगल कि सब कुछ बहुत आसानी से कुछ भी नहीं मिला। मतलब एक जो रास्ता होता है जब पहले से बना हुआ होता है, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल होते हैं, आप उन्हें हटा सकते हो, पर जब रास्ता ही नहीं बना और आपको पूरा रास्ता बनाना, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना मुश्किल होता है। मतलब किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये सारी जर्नी जो हमारी है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा। एंड वी आर थैंकफुल टू दोज पर्सन जिन्होंने हमें जगह जगह जिनसे हमें मदद मिली। तो ये एक जर्नी ऐसी जर्नी है जहाँ बहुत स्ट्रगल है, उसके बाद फिर जाकर के सक्सेस भी है और खुशियां भी है। लेकिन आज भी जो हमारी लाइफ है, हर रोज एक नया चैलेंज आता है। ऑफिस में ये अपॉइंट हो चुका है सेक्रेटरीट में, ही इज द फर्स्ट ऑटिस्टिक एम्प्लॉय इन द इंडिया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके आया। पर ये सब कुछ बहुत मुश्किलों से हासिल हुआ इसे, और इसके लिए इन स्पाइट ऑफ हिज फिजिकल एंड इमोशनल चैलेंज जो इसने कुछ हासिल किया है, वो वास्तव में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी है कि अगर हम अपने बच्चों को एक दिशा दे दें सही, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने बहुत ही मतलब एडवोकेसी माँ का एक काम और सारा बहुत ही अच्छे से किया है दीदी। मतलब आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है इस बारे में। हम लोग कुछ सवाल है उसमें कुछ आए हैं चैट बॉक्स में। बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहाँ से डालना है? स्पीच कब आया अक्षय का, मतलब कौन से एज में, जब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ उनका? जब ये 2-2.5 साल का था, तो जैसे मैंने बताया कि सिंगल वर्ड्स बोलता था, जैसे मम्मा, पापा, बस, इससे ज्यादा, या दीदी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। कोई चीज इसे चाहिए होती तो ये, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। तो इसे कोई चीज चाहिए होती तो ये मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता था, बता नहीं पाता था, वो इशारा करता था, दे दो दे दो, बस इतनी सी ही स्पीच थी। पर फिर जब, जैसा मैंने बताया कि जब ये 4 साल का हुआ और हमने स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू किया, तो उन्होंने बताया
कि हम किस तरह से इसकी स्पीच डेवलप करें। वो ये टेक्निक थी कि आप जितना ज्यादा बच्चे से बात करेंगे, जितना ज्यादा इसे एक्सपोजर देंगे, नए नए वर्ड्स सिखाएंगे, उतना ही इसे पता चलेगा कि इस चीज का नाम क्या है। अदरवाइज जब तक हमें किसी चीज को क्या बोलना है वो नहीं पता होगा तो वो नाम नहीं लेंगे, इशारों से ही बात करेंगे। आज अगर हम कहीं जर्मन, फ्रेंच, ऐसी जगह जहाँ ये लैंग्वेज चलती है वहां चले जाए तो इशारों से ही बात करेंगे। सेम अपने बच्चे के साथ था। और उसके बाद फिर जब स्पीच थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हुआ तो इकोलेलिया का इशू आया कि मैंने अगर इससे पूछा कि आपको क्या चाहिए तो ये फिर वही रिपीट करने लग गया, आपको क्या चाहिए। वो फिर मुझे इसे सिखाना पड़ा कि जवाब कैसे देना है। तो लगभग आप मान के चलिए 2.5 साल का था तब स्पीच लिमिटेड थी, सिंगल वर्ड, और 3-4 साल का हो गया था तब भी सेंटेंस पे नहीं था। और उसके बाद ही इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट, जैसे जैसे मैंने इसके साथ काम किया, इसका स्पीच डेवलपमेंट होता गया। एक पेरेंट पूछा कि हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम फॉर द गवर्नमेंट जॉब, प्रिपेयर किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक्स में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न है ये हमारे बच्चों की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें विजुअल इनपुट चाहिए होता है, तो एज दे कैन नॉट सी, तो उनके लिए सब्स्टिट्यूशन होते हैं क्वेश्चंस के, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें विजुअल इनपुट नहीं मांगा जाता। तो वहां we are considering the specific requirements of visually impaired person, but just because ये अभी ऑटिज्म आया है 2016 में ही, डिसेबिलिटी इसमें रिजर्वेशन दिया गया है रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो इसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न है वो कहीं से भी हमारे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट इवन फॉर नॉर्मल पर्सन। अगर आप में से किसी के बच्चों ने जो अपने या किसी आपके परिवार में किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सेकंड्स में आपको आंसर देने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का यही पैटर्न होता है। ये नॉर्मल के लिए है, तो हमारे बच्चे तो वैसे ही स्पेशल है, तो इनके लिए मुझे किस तरीके से इसे पढ़ाना पड़ा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वहां मैंने इसके साथ ज्वाइन किया। यही इसको 10th में जब मैथ्स पढ़ाया, जैसे इसने बताया इसे मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी, तो इसके जो मैथ्स टीचर थे उनको मैं घर पे वो आके मुझे पढ़ाते थे मैथ्स, और खास तौर पे मुझे जो डायग्राम थे उसमें बड़ी इश्यू आते थे, जो रेखा गणित जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री, उसमें मुझे बहुत इश्यू आते थे। मैंने खुद ने अपनी पढ़ाई के टाइम पे इसीलिए मैथ्स छोड़ के म्यूजिक लिया था कि मुझे मैथ्स नहीं करना पड़े, बट बिकॉज ऑफ अक्षय मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ा, और फिर मैंने इसे सिखाया मैथ्स, क्योंकि मेरे से इसे लगता है कि ये जल्दी सीखता है, एक पेरेंट से बच्चा हमारा जल्दी सीख पाता है, और फिर 1-to-1 हम कर सकते हैं स्कूल में, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा ही जब इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए तो पहले मैंने इसके साथ ही मैं जाती थी, उनको बोल दिया था कि मैं भी इसके साथ आऊंगी, ताकि आप जो इसे पढ़ा रहे हो वो मैं इसे घर पे समझा सकूं। फिर मैं इसे घर पे आकर के जो टेक्निक थी वो इसे समझाया करती थी। तो इस तरीके से हमने इसके साथ इसे आगे बढ़ाया। कोई मेडिकेशन यूज किया दीदी आपने कभी इनके लिए? जब हमें पहली बार ये पता चला कि इसे ऑटिज्म है, तो उस टाइम ऐसा कोई जो एलोपैथिक मेडिसिन तो हमने नहीं दी, लेकिन जो इसके बिहेवियर, जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम थे, जैसे इसको ईटिंग डिसऑर्डर था कि ये सिर्फ लिक्विड चीजें ही खाना पसंद करता था, च्यूइंग वाला इश्यू था इसके साथ बहुत ज्यादा, और दूसरा ये था कि इसे स्लीपिंग डिस्टरबेंस था और हाइपर एक्टिव था, मतलब इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान, एग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ये इश्यूज थे इसको। तो हमने होम्योपैथिक जरूर उस पे गए हम, जिससे कि थोड़ा इसको कंट्रोल हो इन चीजों का। और कभी कभी हाँ, स्पेशल डाइट फॉलो किया है जैसे आजकल बहुत लोग? नहीं, कोई स्पेशल डाइट नहीं फॉलो किया। हाँ, एक चीज जरूर फॉलो की, 2000 में इसे एक बार एपिलेप्सी का अटैक आया था,
उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी और उसके अंदर वो मेरे फादर इन लॉ जो डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक बुक दी थी। उसमें काफी चीजें लिखी हुई थी और जो मैंने उसके अंदर पढ़ा उसमें ये था कि जो ब्रेन वायरिंग है उसमें तो क्या चीजें जिससे कि ये चीज, तो उसमें जो पैक्ड फूड है और ये जो चॉकलेट्स वगैरह और चिप्स वगैरह जो भी पैक्ड फूड है वो आप जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा होगा। तो बस सिर्फ वही एक मैंने मतलब फॉलो किया, बाकी तो सच कुछ भी नहीं। जैसे आजकल ग्लूटेन फ्री और मिल्क वाला जो ये सब कुछ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अक्षय बिल्कुल ये बहुत ही, इसकी तो बहुत ज्यादा चॉइस थी, बहुत लिमिटेड आर्ट वो थे ऐसी चीजें जो ये खाया करता था और आज ये हर चीज खाता है। मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया हमारा पूरा फोकस इसी बात पे रहा कि एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए ये, ना कि इसके हिसाब से हम इसकी जरूरत जो ये चाहता है कि मैं सिर्फ जैम और चावल ही खाऊं तो मैं वही देती रहूं। नहीं, ये तो लिक्विड चाहता था क्योंकि ये चबाना ही नहीं चाहता था, पर मैं जिद करके बैठी रहती थी कि नहीं खिलाना, जैसे कि बाइट लो, आज एक खाइए कल दो भी खाएगा, क्योंकि इसे पता था कि इसकी मम्मी तो इससे भी ज्यादा जिद्दी है। मैम होम्योपैथिक दवाई से फर्क आया अक्षय में? होम्योपैथिक मेडिसिन से इफेक्ट पड़ा? हाँ, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। और दूसरा ये है कि जो दूसरी चीज मेडिकेशन से ज्यादा जिन चीजों पे मैंने फोकस किया वो ये था कि जैसे हाइपर एक्टिविटी था उसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा, कि अगर मुझे ये महसूस हुआ कि सारी एनर्जी अगर खा ही रहा है, बच्चे तो खाते ही हैं और हम कुछ ज्यादा ही अपने स्पेशल बच्चों को कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक फूड देते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसको फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस किया, दौड़ना, भागना, साइकिलिंग, जो स्विमिंग मैंने बताया कि इस तरीके से हम कि किसी तरह से बच्चा जो कैलोरी बर्न करे, एनर्जी निकाले बाहर, ताकि वो हाइपर एक्टिविटी अपने आप डिक्रीज होगी। ये सबसे मतलब बेहतरीन तरीका होता है रादर देन गो टू मेडिकेशन, कि आप डॉक्टर से जाकर के कह रहे हैं तो वो फिर सैडेटिव और लेथार्जिक ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपके बच्चे सुस्त हो जाएं। तो वो मैं एक अच्छा ऑप्शन नहीं समझती। हम गए भी थे पर एक ही डोज में ये स्कूल से आते ही लेट सोफे पे आया, लेटा और सो गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई सही तरीका नहीं है। फिर हमने फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दिया और उसका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और एक बिहेवियर मैनेजमेंट, तो इससे इसके जो ये इश्यूज थे एंजाइटी वगैरह, जब इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो ये सारे इश्यू होते हैं। दूसरे एनर्जी लेवल, और फिर कहीं पॉजिटिव एनर्जी को, जो एनर्जी उसको पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज, तो फिर वो अपने आप डिसऑर्डर जो हैं, जो एसोसिएटेड इश्यूज है, वो कम होना शुरू होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, डांस हुआ, कंप्यूटर हुआ, स्विमिंग, साइकिलिंग, इतनी सारी चीजें हमने इसकी लाइफ में ऐड कर दी, धीरे धीरे ही की। तो इसके पास कई ऑप्शन आ गए कि वो ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके और अपना टाइम निकाल सके। थोड़ा इसके साथ एक इश्यू है जो आज भी है कि जब भी ये खाली बैठा रहता है तो जो सेल्फ टॉकिंग है, यानी कि अपने आप से बातें करना, या मतलब दिमाग से नहीं सोचना, मुंह से सोचना, वो है। लेकिन ठीक है, अब हर चीज हम ऑटिज्म में जो लाइफ है उसके साथ तो जीना है। जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इतना ही बहुत है कि ये मतलब मेन स्ट्रीम में पढ़ा, दूसरे जो सोसाइटी है वहां जाके बैठता है, अपनी बात कहता है, धीरे धीरे आगे और फर्दर इम्प्रूवमेंट आएंगे। और जो लाइफ में हर्डल नहीं है उसको ठीक करने जाने से कोई मतलब भी नहीं है। अगर टॉकेटिव है तो इट्स नॉट अ हर्डल। तो हम लोग अननेसेसरी थिंग्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं कभी कभी। या दीदी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अबाउट हिज मतलब एडीएल्स पे, कि आपने टॉयलेट ट्रेनिंग, राइटिंग, ईटिंग, वो सब मतलब बहुत काफी सारे क्वेश्चंस हैं उस पे कि कैसे। मैं उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं जितना हो सकता है मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगी। आपके पास अभी कितना टाइम है हर्षाली? ऐसा कुछ नहीं दी आप ठीक है, ओके, 5 to 10 मिनट्स हम लोग और ले सकते हैं। टॉयलेट ट्रेन का ये था कि ऐसा ही टोल्ड यू कि ये बहुत स्टबर्न था, ये चाहता ही नहीं था। ये हमारे बच्चे जो है ये थोड़ा सा राजाओं वाला एटीट्यूड होता है कि दूसरे साफ करेंगे, बेशक वो पॉटी ही साफ करना हुआ। पर फिर मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ा कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली
और अगर आपने ऐसा किया, इसकी कुछ एक पसंद की चीजें थी, जैसे चॉकलेट हुआ, आउटिंग हुआ, ये सब बड़ा पसंद था, तो अगर आपने ये सब किया ना तो मैं ये चीज दूंगी नहीं। फिर कितना ही ये शोर मचाता था, मैं जैसा बताया मैं कुछ ज्यादा ही इन चीजों को लेकर के पर्टिकुलर थी कि नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर हमारा बच्चा स्पेशल है तो समाज उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये सच्चाई है। फिजिकल डिसेबिलिटी क्योंकि वो मतलब विजिबल है तो वहाँ काफी सिंपैथी मिल जाती है, बट एज फार एज ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर कंसर्न तो यहाँ हमें कोई, जिसे कहते हैं रिलैक्स, हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, बल्कि हमारे बच्चों को देख के तो इन्हें लगता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें जहां तक हो सके कुछ इस तरीके से इनका बिहेवियर मैनेज करना है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट ना करे सोसाइटी में। दूसरे, इन्हें भी एक्सेप्टेंस तभी मिलेगी जब इनका व्यवहार एक्सेप्टेबल होगा, जहां तक हो सकता है इतना तो हम करें। तो जब इसे लगा कि ये जो मम्मी ने कहा है और ये चीज जेन्युइन है, मुझे करना पड़ेगा, चाहे से मैं कितना ही सर फोड़ूं या कितना ही रोऊं, धीरे धीरे इसका जो बिहेवियर है वो मैनेज होता रहा। और ये इन चीजों के साथ जब बिहेवियर मैनेजमेंट आ जाता है आपको करना, तो बच्चे आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगते हैं, उन्हें खुद भी समझ आ जाता है, उनकी खुद की जो रीजनिंग है वो भी डेवलप होती है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि जो हम कहे जा रहे हैं वही वो कर रहा है, उनकी खुद की रीजनिंग भी डेवलप होती है, सेल्फ एनालाइजेशन भी डेवलप होता है कि हाँ हमें इस तरह से करना है। और दूसरी चीज किसके लिए पूछ रहे थे हर्षाली, और दूसरा इशू क्या था टॉयलेट ट्रेन के बाद? ईटिंग वाला, राइटिंग या ये सब कैसे, मतलब पहले से अचीव नहीं था तो फिर कैसे अचीव किया? वो ईटिंग का मैंने आपको बता ही दिया। राइटिंग का बताया जी। राइटिंग का मैं आपको बताती हूँ, जब इसने पढ़ना शुरू किया था तो इसकी जो ग्रिप थी जैसे चक्कू पकड़ते इस तरीके से ये पेंसिल होल्ड करता था। इसकी जो फाइन मोटर मूवमेंट था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। इवन इसने जो शू लेसेस है वो भी करीब 5-1 साल का हो गया था तब बांधना शुरू किया। ये चाहता था कि इसे वेलक्रो वाले शूज ही बांधे जाए। मैं भी उस टाइम तक तो मुझे भी ठीक था कि हाँ ठीक है वेलक्रो वाले कंफर्टेबल है, बट बाद में ये लगा जब मेरी एक जानकार थी, उन्होंने कहा कि आप इसको वेलक्रो ही पहनाते रहोगे तो ये लेस बांधना कैसे सीखेगा। फिर बात समझ आई कि बिल्कुल सही बात है, ये जो चीज वो नहीं कर सकते हमें सिखाना है। फिर हमने जो हमारे गेट थे उसके ऊपर मैं नाड़े बांधती थी और उससे इसको गांठ लगाना सिखाती थी, एक ही सही, धीरे धीरे फिर डबल नॉट करना, इस तरह से इसको नॉट करना सिखाया, शू लेसिंग वगैरह इसी से सीखा, बटनिंग यही एक टास्क, ये भी चीजें हमने सिखाई। तो ये बहुत छोटी चीजें लगती है लेकिन हमारे बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट है, ये जो पेरेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जी जी, इस तरीके से मतलब इन बच्चों को सिखाना पड़ता है जो सिखाया। और क्या मतलब ये जो बेसिक स्किल्स हैं वो कह सकते हैं ना 5 से 7 साल की उम्र तक अक्षय सीख चुके थे सारी चीजें। नहीं, वो हर रोज का टास्क था, ऐसा नहीं कि 5 से 7 साल में सारा सीख गया, लेकिन मतलब 7 साल तक आ गया था, वो टॉयलेट ट्रेन हो चुके थे। हाँ, टॉयलेट ट्रेन तो ये 5 साल में हो चुका था ये। जी जी जी, इसे लगा मुश्किल से उस चीज में हमें, जब मैंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो फिर शायद 1 हफ्ते के अंदर इसे समझ आ गया था कि अब और नहीं चलेगा। ये सीधा मतलब उस पे ट्रैक पे आ गया था कि ये फिर खुद ही अपना वॉश करने लगा था। मैं खुद पीछे हाथ लगाती थी ताकि इसे ये फील ना हो कि मुझे इसे करना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हाथ इसी का होता था, बस सपोर्ट मैं देती थी। पर वो धीरे धीरे वो भी विड्रॉ हो गया, मतलब पहले फिजिकल सपोर्ट था, फिर फिजिकल प्रॉम्प्टिंग आई और उसके बाद फिजिकल प्रॉम्प्टिंग भी खत्म हो गई, फिर वर्बल प्रॉम्प्टिंग आई और वर्बल प्रॉम्प्टिंग से भी मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जब लगा कि अब ठीक है, अब ये करने लग गया, फिर मेरा बोलना कम हो गया, फिर ये अपने आप ही करने लगा। ये टॉयलेट ट्रेनिंग का था। और राइटिंग में जैसे मैंने बताया ग्रिप नहीं थी, तो वो ग्रिप धीरे धीरे ये जो लेसिंग वगैरह, बटनिंग, इन सब चीजों से इसकी ग्रिप डेवलप हुई। उस टाइम तक कोई ऐसी चीजें नहीं आती थी जैसे आजकल पेंसिल ग्रिप आती है मोटी मोटी, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो हम मोटी पेंसिल ही ढूंढते थे कहीं मिल जाए, पर धीरे धीरे ये हो गया और आज तो इसकी बहुत अच्छे से लिखता है ये। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, अक्षय ने शॉर्ट हैंड सीखी है, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए भी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत। और मुझे लगता है शायद ये वर्ल्ड में पहला ऑटिज्म प्रभावित होगा जो शॉर्ट हैंड जानता है। जी जी बिल्कुल। एडोलेसेंस के कोई इश्यूज आपके सामने आए जब वो एडोलेसेंस के एज में आया?
हाँ, वो बहुत टीनेजर वाले इश्यूज, यू नो वेरी वेल कि कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिर वो एग्रेशन, थोड़ा अपनी बातें मनवाना, और दूसरे भी कई इश्यू आते थे, वो सब जी इसके जी साथ आए, पर वो हमें अपने तरीके से ही सेटल करना पड़ा। उस चीज के लिए किसी ने कुछ नहीं सिखाया। एक जो मदर होती है वो अपने आप ही जान जाती है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। मैंने जो बाद में मैंने फिर स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया, जब ये 10th में इसकी 10th हो गई थी, उसके बाद मैंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया कि मैं खुद और समझ सकूं डिसेबिलिटी के बारे में। फिर जब इसने 12th कर ली थी, उसके बाद मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पीजी वो किया, डिप्लोमा। तो वो सब इसलिए कि मैं फिर जो मैं इसके साथ अनुभव लिया है उसका मैं दूसरों को फायदा दे सकूं। तो यही सब निकला हमारे कि जो इसने जिस तरीके से पढ़ाई वगैरह की, तो मुझे वो टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ी अपनी, कि किस तरीके से इसको पढ़ाने के लिए शॉर्ट एंड स्पेसिफिक टू द पॉइंट हम बात लिखिए। और ऐसे स्पीच डेवलपमेंट में भी बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए, एकदम जितना हो सके स्पेसिफिक रह के बात करिए। गो देयर या ये लाओ, ये नहीं कि उधर से उठा करके ये चीज ले आओ। वो हमारे बच्चों के लिए हेलो। एक और चीज जो मैं यहाँ पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अक्षय के मामले में हमने इसके लिए इतने सारे जो दरवाजे थे वो खोल दिए, ना सिर्फ डांस म्यूजिक, स्पोर्ट्स में भी ये 2017 में आया। यू विल मैंने आपको बताया। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं हम। फिर से बात करते हैं उनसे, कनेक्ट होंगी। मैम एक चीज पूछना था, क्या आपने अक्षय के साथ शेयर किया था उसके ऑटिज्म के बारे में? हाँ हाँ, पूछते हैं, उनको कनेक्ट करने दीजिए, 1 मिनट। थैंक यू। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, आपको प्रतिभा अनम्यूट करना दीदी। होगा। हेलो मैम म्यूट पे है। आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, प्रतिभा दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज? हेलो, हाँ, अब आ रही है। आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी हाँ, क्या पूछ रहे थे हम? जी, हमने कौन सी मैम पढ़ी है, ये तो पेरेंट्स जानना चाह रहे थे कि आपने डाइट इश्यू की है, वो जो भी बुक्स पढ़ी आप चाहे तो बाद में भी हमसे शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये था कि आपने अक्षय को कब बताया कि उसे ऑटिज्म है, और कैसे, मतलब रिएक्शन या ये था? मैंने उसे कभी भी नहीं बताया पहले कि उसे कोई ऐसा इश्यू, क्योंकि मैं ये मेरा नजरिया हो सकता है दूसरों का डिफरेंट हो, कि मैं उसके दिमाग में ये बात ही क्यों डालूं कि ही इज अ स्पेशल पर्सन। इवन जब हम स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रहे थे तब भी इस इशू पे मेरा आर्गुमेंट रहा था कि ये क्या जरूरी है क्या कि हम ये बताएं कि यू आर ए स्पेशल। ठीक है, आपके साथ कोई इशू है, कोई बात नहीं, हम उसे मैनेज करें, हर इंसान डिफरेंट होता है। इसे पता चला पहली बार तब जबकि ये एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स होता था। वहां पे किसी ने
इसका परिचय दिया था कि ही हैज ऑटिज्म। तो इसने घर आके पूछा था ये ऑटिज्म क्या होता है। मेरे ख्याल में ये 2016 की 15 की बात है, 2015 की बात है जब इसने हाँ, मुझे, मैंने कहा किसने बोला, बोले कि वो एक बोल रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, जो बहुत मस्त रहते हैं वो लोग ऑटिस्टिक होते हैं। अच्छा दीदी, इनके फादर और फैमिली सपोर्ट, इनका भी तो रोल, फादर का भी रोल आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगी? फादर तो स्विमिंग पूल में ही उतर गए थे इसे स्विमिंग करने के लिए। और साइकिलिंग उन्होंने सिखाई, इसे सपोर्टर लगा के वो इसके साथ दौड़ते थे, ये साइकिल पे बैठता था और आज ये मोटरसाइकिल चलाता है। मतलब जब हम स्टेडियम जाते हैं, हम डेली जाते हैं स्टेडियम पे शॉर्ट पुट प्रैक्टिस के लिए, तो ये स्कूटी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है और पीछे मैं बैठती हूँ इसके। तो वो सारा योगदान इसके फादर का ही है। जी जी। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, जो हम सारे पेरेंट्स के दिमाग में चलता है कि फ्यूचर में शादी का क्या सोचा है हमारे बच्चे? मैं सोच रही हूँ। अब इसका जॉब हो चुका है तो मैं उस पे सोच रही हूँ और डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि इसकी मैरिज हो। पर वो एक बहुत बड़ा इशू है और उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ, ये लाइट मोड वाला इशू नहीं है, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें सोचने हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक लाइफ टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंपेनियनशिप है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ चीज पसंद नहीं आई तो हम उसे बदल सकते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। देखिए इनमें इतना, अक्षय ने जो भी कुछ हासिल किया, लेकिन ये दिल से बहुत हमारे बच्चे सीधे होते हैं। इनमें वो मैनिपुलेशन, वो चालबाजियां नहीं होती जो कि हम लोग कर सकते हैं, वो इनमें नहीं होता। तो इनको ज्यादा खतरे होते हैं इन चीजों को लेकर के। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उस हर एस्पेक्ट पे सोच रही हूँ और मैं जी जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ और अक्षय के मैम साथ। एक चीज पूछना था, क्या जी पूछ सकते हैं मैम? हाँ जी बिल्कुल। मैम आपने जैसे बोला कि उसके बिहेवियर इश्यूज मैनेज हुए, स्कूल में भी कॉलेज में भी जब वो गया तो काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स थे बट मैनेज हुए। बट मैम एक चीज मुझे बताइए दीदी कि जैसे उसकी दोस्तियां कैसे हुई? मतलब मेरा बेटा में उसमें भी क्या है ना कि बिहेवियर इश्यू मुझे ज्यादा नहीं है, लेकिन हेलो हेलो, हाँ हाँ जी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। हेलो। हाँ मैम मैं पूछ रही थी कि अगर मतलब जैसे आपने कहा कि बिहेवियर इश्यूज के बारे में, तो बिहेवियर इश्यूज जैसे मेरे बेटे में कम है। जैसे हम लोग उसे पिकनिक पे या कहीं ट्रिप पे लेके जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक चीज की मुझे हमेशा कमी फील होती है कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, पर वो अपनी दुनिया में रहता है, दोस्तों के दोस्ती नहीं कर पाता। तो मुझे बहुत मतलब उसके लिए ऐसा लगता है कि शायद मुझे तकलीफ होती है कि अरे कैसे देखो कितना अकेला है, तो मुझे वो बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, या मतलब आपने कैसे मैनेज किया, या मतलब आपका क्या व्यूज है कि क्या ये ओके है? मतलब उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो अपने हिसाब से एंजॉय कर ले रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? या अक्षय की दोस्ती हुई, आपने क्या किया उसके लिए? क्या अभी भी अगर वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अक्षय अकेला है तो ठीक है, इट्स ओके, वो उसका पर्सनालिटी का पार्ट है, मुझे उसको लेके ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, या उसको जो है वो है, मतलब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती? मतलब क्या आपने कुछ किया या कि इट्स ओके? नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके। मैंने बहुत कोशिश की, जैसे मैंने बताया था कि स्कूल में मैं इसके जो कलीग स्टूडेंट्स थे उनके नाम लेके आती थी ताकि मैं इसको उनके साथ कनेक्ट कर सकूं कि ये आपके दोस्त हैं, और उन नामों से मैं इससे पूछा करती थी धीरे धीरे कि ये उनके बारे में फिर इंटरेस्ट ले बोले और इसके दोस्त हुए। ललित का तो इसने खुद ने भी नाम बताया है, पर वो बहुत लिमिटेड हुए। जो बचपन में थे वो 3-4 दोस्त थे जो बहुत छोटे थे, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके अपने थोड़े ये हो जाते हैं कि हम इन बच्चों के साथ क्यों एडजस्ट हो, ये तो ऐसे करते हैं, ये ऐसा एबनॉर्मल है बिहेवियर इनका, तो वो अपने आप इन लोगों से दूर होते जाते हैं। बट हाँ ये बात सही है, हमारे बच्चों के दोस्त कम होते हैं, बट ठीक है,
कोशिश तो हम बहुत करते हैं, हम आगे आज भी, जैसे मैं ये ऑफिस इसने नया ज्वाइन किया है, तो वहाँ जो इनके साथ के हैं वहाँ जाकर के इसके बारे में बात करना कि आप जब भी लंच वगैरह करते हैं आप इसको अपने साथ लीजिए, उनके साथ कंफर्टेबल फील कराना, वो मैं करती हूँ। पर ये जरूरी नहीं है कि इनके बहुत सारे दोस्त हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों के बारे में जितना ज्यादा लोगों से डिस्कस करेंगे उतना ही लोग इन बच्चों के बारे में समझेंगे, और मान के चलिए लोगों का नजरिया भी इनके प्रति धीरे धीरे बदलेगा, और बदल रहा है। पहले की वाली दिक्कतें आज नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा मैम, बिल्कुल। आपकी अभी पहले की बातें सुन के आंखों में आंसू आ रहा है। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? प्लीज हम लोग अभी और क्वेश्चंस पर्सनली ले सकते हैं। सॉरी, हमें अभी हमारा टाइम काफी क्रॉस कर चुके हैं। हम आप उन ईमेल आईडी हम प्रोवाइड करेंगे, आप उस पे प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। और दी बहुत अच्छा लगा, आप जर्नी हमें बहुत इंस्पायरिंग रही, और सर्टेनली मैं मतलब देख सकती हूँ कि बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको काफी अच्छा करने वाले हैं। और आपकी और जानकारी के लिए आप टूटे दीदी। प्रतिभा दी आप म्यूट पे हो, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हाँ। एक चीज है, जैसे कई पेरेंट्स की हो सकता है कुछ क्वेरीज रह गई हो, तो आप मेरा जो वेबसाइट है वो भी अक्षय की वेबसाइट, मेरा नंबर भी है, आप वो शेयर कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी पेरेंट को जरा सी भी मेरे वजह से हेल्प मिलती है या उम्मीद मिलती है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच। और अक्षय के लिए भी बेस्ट विशेस, आपके लिए भी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच योर टाइम एंड अक्षय's टाइम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।